Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed and today we are going to discuss chapter 6, routine messages, email, memos, letters, typical request responses and instruction messages. Remember, this is ADP semester 3rd and business communication 1. The title, the name of the course is business communication 1. So let's start the topic. As we all know that we have just completed the 5 chapters of this book, and now we are heading towards chapter 6, positive messages. Remember, the name of the chapter is positive messages, where today we are going to complete 2 objectives of this chapter, or you can say the 2 main topics of this chapter. The first objective of this chapter we will be able to understand after completing this video today, to understand that particular 2 objectives, and we will gain 2 objectives. The objectives are understanding the channels through which typical positive messages travel in the digital era, emails, memos, business letters, and how business letters should be formatted. The second one is compose direct message that make request, respond to inquiries online and offline, deliver step-by-step instructions. So these 2 objectives we are going to achieve today. Now let's start the topic. The very first topic, the beginning of this today's discussion, is routine messages. And in routine messages we have email, memos, and letters. Remember, my dear students, these are very important detail that has been presented in front of you. Everyone must remember these particular red and green, of course the blue as well. लेकिन याद रखिएगा कि ये जो रेड में है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ होल फ्रॉम होल द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ यू, द पेज इन फ्रंट ऑफ यू. मोस्ट वर्क प्लेस मैसेजेस आर पॉजिटिव. अब होते क्या है, रूटीन मैसेजेस के बारे में जनरली हम ये एक डेवलप करने लगे हैं कि जर्नल जो है वो रूटीन मैसेजेस की बात करने लगे हैं कि रूटीन मोस्ट वर्क प्लेसेस मैसेजेस आर पॉजिटिव और न्यूट्रल एंड देयरफॉर डायरेक्ट. ये डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं. पॉजिटिव मैसेजेस आर routine messages. They help workers conduct everyday business, such as routine messages include simple request for information or action, replies to customers, and explanation to co-workers. Remember, there are 2 kinds. I'm going to repeat it again: request for information or an action, and then replies to customer, and the third one is explanation to co-worker. Other may be include instructions, direct claims and complaints. याद रखिएगा ये चीज़ें जो है वो जो हमने आज जो पॉसिबली ये इन चीज़ों को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. रूटीन मैसेजेस के बारे में बेसिकली बताया हुआ है कि वो होते क्या. ईमेल, मेमोस, लेटर्स आर इम्पोर्टेंट चैनल्स. बेसिकली याद रखने की बात यहाँ पर ये है कि ये रूटीन मैसेजेस तो हैं, लेकिन हमने मैसेजेस को किन ज़राए के ज़रिए जो है वो हमने भेजना है. चैनल्स हमारे पास क्या होंगे, वे कौन से होंगे, वो हैं ईमेल, मैसेजेस, लेटर्स are important channels. These are the channels, these are the way, these are the path through which of communication within and outside of organization is done. याद रखिएगा कि इन्हीं के ज़रिए जो है वो हमने कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट करनी होती है. So let's move towards another point. अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लेटर्स. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, डबल बी का इस्तेमाल हुआ है. एनी हाउ,
अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लेटर्स होते क्या हैं, पहले तो उनको समझ लीजिएगा, ताकि जब आपने किसी बिजनेस लेटर का रिप्लाई करना है तो उनकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए. Despite the advent of electronic communication technologies such as an email, in some certain situations, letters are still the preferred channel of communication for delivering messages outside an organization. याद रखिएगा कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर कोई नो डाउट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो डाउट के इंस्टेंट मैसेजेस, नो डाउट के शॉर्ट मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस बहुत की रोल प्ले कर रहे हैं आजकल. व्हाट्सएप का रोल जो है बहुत ज़्यादा की रोल प्ले कर रहा है. लेकिन जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जब भी कोई फॉर्मल वे में कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है तो वो लेटर कोई ना कोई सर्कुलर पास होता है और वो पेज फॉर्म में, एक लेटर की फॉर्म में वो आपको मिलेगा. आपने आजकल कोविड चल रहा है, आपको सबको पता है, और हर बंदा परेशान भी है इस लिहाज से. तो आपने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जब भी कोई पैगामात आते हैं तो वो अक्सर बेशतर हमें अपने सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स मिलती हैं. वो याद रखें, वो सारे पैगामात जो हैं वो रिटन फॉर्म में पब्लिश किए जाते हैं. फिर जो है उसके बाद उसकी जो पिक्चर्स कह लें या उसकी पीडीएफ फॉर्म कह लें या दूसरे स्ट्रक्चर में जो है उसकी वो डिलीवर कर दी जाती हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी, ताकि उस पर अमल दरामद हो सके. तो वो एक रिकॉर्ड डेवलप होता चला जाता. इसकी वजह से जो लेटर्स हैं उनकी, नो डाउट के ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी अफादियत तो बहुत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रेफर्ड चैनल है वो लेटर्स का ही है, वो पेज का ही है, वो रिटन फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में आता है और वो डिलीवर भी होता है मैसेज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस लेटर्स आर नेसेसरी व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स. अब बिजनेस लेटर्स ज़रूरी कब होते हैं? जब सिचुएशन ऐसी बने. क्या सिचुएशन बने? परमानेंट रिकॉर्ड हो. नो डाउट के ईमेल जो है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, लेकिन किसी हद तक लेट्स सपोज अगर ये ऐसा ही है कि आपका हार्ड डिस्क जो है वो बर्न हो जाए या हार्ड डिस्क में ऐसा वायरस आ जाए जो सारे का सारा डाटा आपका जो है वाइप आउट कर जाए, ये तो वो फिर उसमें ये है कि आपके पास सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है. आप रिकवर भी नहीं कर सकते आपके, क्योंकि उसमें से चांसेस ही होते हैं कि आपके सारे जो डाटा है वो उस पर एक्सेस हो जाती है दूसरे जो वायरसेस होते हैं. तो इसके बाद फिर रिक्वायर कॉन्फिडेंशियलिटी. समटाइम ऐसा होता है कि आपकी जो ईमेल के पासवर्ड होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं दूसरे तक भी, तो इससे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो भी ख़त्म हो जाती है कि पता नहीं कोई और ना हमारे जो सीक्रेट मैसेजेस हैं या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं कंपनी के वो कोई और ना देख पाए. लिहाजा इस लिहाज से भी जो है वो आप मैसेजेस जो डिलीवर्ड मैसेज है वो आपका इस लिहाज से भी जो है वो सेफ एंड पर रहता है. कॉल्स फॉर फॉर्मेलिटी एंड सेंसिटिविटी. ऑफ कोर्स इसमें फॉर्मेलिटी भी देखी जाती है और फिर कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसको इसमें रिस्क नहीं लिया जाता कि इसको एक्सपोज कर दिया जाए. लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर ये सेट करना चाहूँगा कि सेंसिटिविटी के हवाले से और फॉर्मेलिटी के हवाले से कि जब भी हम बैंक्स वगैरह में कोई लेट्स सपोज कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हम उनसे लेते हैं तो उनका आपने भी सब ने देखा होगा कि वो नॉर्मली लेटर्स के ज़रिए ही वो आपको आपका जो है चिपसेट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिस पर मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. आपका कार्ड नंबर होता है, वो सारे का सारा जो होता है कॉन्फिडेंशियल होता है और वो उसको ओपन या वो अगर डैमेज हो तो नॉर्मली जो है वो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रिटर्न कर देता, क्योंकि ऑलरेडी डैमेज हुआ होता है. इस लिहाज से तो वो उसकी जो है, लेकिन ऐसा काम जो है वो ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं होता. फेवर परसुएसिव एंड वेल कंसिडर्ड प्रेजेंटेशन. तो इसमें दूसरी ये बात आ जाती है फिर आखिर पे कि वो परसुएसिव भी होना चाहिए और वेल कंसिडर्ड प्रेजेंटेशन भी उसमें मौजूद होनी चाहिए कि कोई लेटर देखे उसे पढ़े भी उस हाथ में, उसको जो है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो ज़्यादा काबिल कदर होगा. नेक्स्ट आ जाती है फिर से अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के हवाले से ही अगला जो पॉइंट आ जाता है बिजनेस लेटर के हवाले से कि वो प्रोवाइडिंग परमानेंट रिकॉर्ड. ये हमें परमानेंट रिकॉर्ड फ्राहम करता है. मैनी बिजनेसेस ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स परमानेंट रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल डूइंग एनी एग्रीमेंट रिकॉर्ड, डिफरेंट डिसीजंस और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. यहाँ पर एक ग्लिम्स आपको दिया गया हुआ है, बड़ा शॉर्ट एंड बड़ा स्ट्रेट सिंपल ग्लिम्स दिया गया हुआ है, जिससे ये प्रोवाइडिंग परमानेंट रिकॉर्ड के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम
मैनी बिजनेसेस ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स परमानेंट रिकॉर्ड, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका परमानेंट रिकॉर्ड होता है, और उस परमानेंट रिकॉर्ड के लिए डेफिनेटली जो है वो एक लेटर जो है रिटन पेज वो आता है। उसके अलावा बहुत सारी ट्रीटीज जो साइन होती हैं, उसके अलावा उसके लिए भी रिकॉर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ डिसीजंस होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान, वो उनका भी रिकॉर्ड जो है वो डेवलप होता है, और उसके लिए बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वही काबिल कदर होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब बिज़नेस लेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि सेफ गार्डिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, कि उसमें आप जो है वो उसकी वो एक हिफाजती शील्ड जो है वो एक बिज़नेस लेटर जो है वो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा होता है। जब दो कंपनीज़ के दरमियान या किसी कंपनी का किसी एम्प्लॉय के साथ जो है वो कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा होता है, तो वो बड़ा ही वो कॉन्फिडेंशियल भी होता है, और सेकेंडली ये है कि वो एक हिफाजती शील्ड के तौर पर भी काम दे रहा होता है। मेन इन्फॉर्मेशन आर डिलीवर्ड थ्रू लेटर्स, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटर्स के ज़रिए भी जो है वो शो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फिर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस लेटर्स के हवाले से ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये इनमें से थर्ड पॉइंट ये है कि कन्वेइंग फॉर्मेलिटी एंड सेंसिटिविटी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि समटाइम्स इन्फॉर्मेशन इज सेंसिटिव एंड फॉर्मल विच नीड्स टू रिमेन अंडर रेसिपिएंट्स कंट्रोल डायरेक्टली। जैसे बताया गया आपको पहले कि जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली रेसिपिएंट को पहुंचा दी जाती है लेटर्स के ज़रिए, ताकि वो उसी के कंट्रोल में रहे, और जो है वो सेंसिटिविटी जो है उसकी वो लीक आउट ना हो जाए। उसके फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर है वो एक्सपोज ना हो जाए, या अकाउंट नंबर है वो एक्सपोज ना हो जाए, या कोई और किसी भी तरह के जो खुफिया या सीक्रेट किस्म के जो मैसेजेस हैं वो एक्सपोज ना हो, चाहे वो कंपनी के अपने अंदर से हो या किसी अकाउंट्स वगैरह के इंफॉर्मेशन हो। फिर वो परसुएसिव वेल कंसिडर्ड मैसेज होना चाहिए। लेटर कैन परसुएट पीपल टू चेंज देयर डायरेक्शंस। अगर लेटर आपका परसुएसिव होगा, लेट सपोज एक बैंकर है और वो जो है वो अपने बैंक की तरफ से लोगों को परसुएट करना चाहता है कि लोग जो हैं वो उसमें क्रेडिट कार्ड जो है वो बाय करें या उसको अप्लाई करें क्रेडिट कार्ड के लिए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट है वो अलग से पूरा जो है वो उनको जो उनका पेमेंट स्टाइल है वो होता है, तो उसमें वो उनके जो मैसेजेस होते हैं या उनके पैगामात होते हैं वो रिटन फॉर्म में भी होते हैं और वो वर्बली भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो ऐसा परसुएसिव होना चाहिए मैसेज के जिसको मैसेज पढ़ने वाला जो है वो उसको कंसिडर करे, उसको उसकी प्रेजेंटेशन को, उसके स्टाइल को और मालूमात को जो है वो मालूमात जो है वो अच्छी तरह से उसके साथ कंट्रीब्यूट हो सके, और वो टाइमली प्रोडक्ट जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, यहाँ पर मैं आपके सामने एक जो है वो लेटर जो है उसको एक प्रेजेंट किया हुआ है, ये आपकी बुक के पेज को ही आपके सामने रखा गया हुआ है। ये लेटर बेसिकली इसमें बताया गया हुआ है कि फॉर्मेट के डायरेक्ट लेटर जो है वो ब्लॉक स्टाइल में किस तरह आप डेवलप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका लेटर हेड आ जाता है। ये लेटर हेड का मतलब ये होता है कि उसमें कंपनी का नाम वगैरह, उसका एड्रेस है और वो सारी चीज़ें लिखी होती है कंपनी के हवाले से, लेटर हेड जैसे हम नॉर्मली कहा जाता है। उसके डायरेक्ट बाद है आपकी डेट लाइन आ जाती है, फिर इनसाइड एड्रेस आ जाता है, उसके बाद सैल्यूटेशंस आ जाती हैं जो कि शुरू से आप बच्चों को सिखाई भी जाती हैं, फिर सब्जेक्ट लाइन आ जाती है, याद रखिएगा। और सब्जेक्ट लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है। समटाइम देखें यहाँ पर बॉडी के अंदर जो हमने ना आपको बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस किया ये चीज़ के बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कशन हो रही है, कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ की सूरत में है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बुलेट्स फॉर्म में जो है प्रेजेंट की गई है ताकि जो है वो मालूमात बहुत स्ट्रेट और सिंपल हो जाए। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री लाइन जो है वो, या क्लोजिंग लाइन जिसे कहते हैं, वो आ जाती है। नेम एंड ऑथर साइन सिग्नेचर और कंपनी का जो है वो उसका डेजिग्नेशन वगैरह आ जाता है। ठीक है, इस तरह के लेटर्स को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लिहाजा उन स्टेप्स को देख लेते हैं। और उसके लिए टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि लेटर्स को फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके सामने वही पेज सामने आ जाए, आपके पास हो किताब के अंदर, अगर आप देख सकते हैं बुक के अंदर, तो स्टार्ट द डेट 2 inches फ्रॉम द टॉप और ब्लैंक लाइन बिलो द लेटर हेड विच एवर द पोजिशन इज़ लोअर।
यानी कि लेटर हेड की जो भी पोजीशन है यहाँ पर, क्योंकि ये मर्ज करके पिक्चर आपके सामने है, थोड़ी सी मे बी इतनी वाजिया भी ना आ रही हो, लेकिन ये कि अगर ये मर्ज, अगर ये यहाँ तक आता तो 2 इंच का जो है वो गैप होना चाहिए आपके लेटर हेड में और आपकी डेट में। उसके बाद आती है बात के फॉर ब्लॉक स्टाइल बिगिन ऑल लाइंस एट द लेफ्ट मार्जिन। ठीक है जी, यहाँ पे ये गौर करें ज़रा कि ये सारी बातें जो हैं वो एक ही लाइन में स्टार्ट हुई हुई है। इससे एक सीक्वेंस डेवलप होता है, एक खूबसूरती, एक कंटिन्यूटी डेवलप होती है। लीव साइड मार्जिन ऑफ 1 to 5 इंचेस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द लेटर एंड फॉन्ट साइज। ठीक है, आपने 1 से 1.5 इंच का जो है वो मार्जिन देना है, और ताकि जो है वो डिपेंड करेगा, सम टाइम ये बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन बढ़ाना 1 पॉइंट जो है वो 5 इंच से ज़्यादा नहीं, वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, वो और लगता है। सिंगल स्पेस द बॉडी एंड द डबल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स, कि आप ये देख सकते हैं कि सिंगल स्पेस है इनके अंदर और पैराग्राफ के अंदर जो है वो डबल स्पेस है। सिंगल स्पेस लाइंस के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान डबल स्पेस है। तो यूज़ लेफ्ट नॉट राइट जस्टिफिकेशन। ठीक है, लेफ्ट जस्टिफिकेशन जो है वो देखनी है, राइट जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो लाइंस जहाँ जहाँ ख़त्म हो रही हो वहीं पर ही आपने उसको ख़त्म करना है। प्लेस द टाइटल ऑफ द रिसीवर्स वेर एवर इट बेस्ट बैलेंस द इनसाइड एड्रेस। उसके साथ ही उसको बेस्ट प्लेस जो है वो टाइटल को जो कर देनी चाहिए जहाँ आपको मौका मिल रहा हो। प्लेस द टाइटल ऑफ द ऑथर wherever it best balance and closing once again the closing lines के साथ जब बात होती है तो वहाँ बेहतरीन तरीके से जहाँ जो परफेक्ट लाइन हो वहाँ पर आपको उसको प्लेस कर देना चाहिए। राइट, तो ये थी फॉर्मेटिंग के लिए टिप्स है। नेक्स्ट स्लाइड की जानी पड़ते हैं कि टिपिकल रिक्वेस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड इंस्ट्रक्शन मैसेज जो है उनको किस तरह बनाएंगे। उनके लिए भी ये मुख्तलिफ़ किस्म के, आज हम बेसिकली हमारा मकसद यही है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेटर्स हैं, लेटर्स को हम मैसेजेस भी कहते हैं, तो उन लेटर्स या मैसेजेस को जो है वो मुख्तलिफ को उनको क्या क्या अंदाज़ और तरीका होना चाहिए, जो आपको पहले बताया ये याद रखिएगा। ये फॉर्मेटिंग है डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर के लिए, और ये ब्लॉक स्टाइल है। ब्लॉक स्टाइल के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप लेफ्ट मार्जिन जो है वो एक सीक्वेंस के तौर पर आप लेकर चलें। अब आ जाते हैं हम टिपिकल रिक्वेस्ट फॉर्म, रिस्पॉन्स भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन मैसेज, ये सारी एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए है कि इन द वर्क प्लेस रूटीन पॉजिटिव मैसेज टेक द फॉर्म ऑफ ईमेल, मेमोज एंड लेटर्स। 3 तरह के ये जो है वो चैनल्स हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव मैसेज के लिए, ईमेल, मेमोज एंड लेटर्स। ठीक है जी, लेट्स सी राइटिंग प्लान फॉर डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज के लिए जो राइटिंग प्लान है वो ये है। इसके लिए 3 चीज़ें, जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो हैं। जैसे सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपकी डेट लाइन तो वो होनी ही है, तो उसके लिए राइटिंग प्लान फॉर डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैसेजेस, दोनों के लिए ये इसका बॉडी जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। ओपनिंग, आस्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फर्स्ट और एक्सप्रेस अ पोलाइट कमांड। इनके आपने जब ओपनिंग कर रहे होते हैं आपने अपनी सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है, आस्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और एक्सप्रेस अ पोलाइट कमांड। यानी कि जो रिक्वेस्ट करनी है, जो कमांड देनी है, जो आपने जो ऑर्डर्स अप्लाई करने हैं उनको इन अ पोलाइट वे, इन अ सॉफ्ट वे जो है वो आपने प्रेजेंट करना है। जो बॉडी होगी, एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट लॉजिकली एंड कॉर्टियसली, आस्क अदर क्वेश्चंस इफ नेसेसरी। कहते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा सवालात भी जो है वो पूछे जाते हैं, और बॉडी के अंदर ऐसा होता है कि उसको जो इंफॉर्मेशन है वो लॉजिकली जो है वो प्रेजेंट करनी की हो जाती है। और दूसरी बात है कि वो बड़ी पोलाइट वे में, बड़ा कॉर्टियसली, बड़ा अपने शाइस्तगी के साथ जो है उसको प्रेजेंट करना है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप जो है किसी कमतर, किसी हकीर किस्म के बंदे को आप अहकामात जारी कर रहे हों। जैसे कि नॉर्मली हमें आम दुकानों पे, शॉप्स पे जो है वो अपने जूनियर सेल्समैन के साथ देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है।
तो क्लोजिंग में ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन विद एन एंड डेट के आप उसमें जब एंड कर रहे थे तो उसमें ख़ास तौर पे आप लास्ट टाइम देते बताते हैं कि ये आपका लास्ट टाइम है। और स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली जब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर भी तो आपको मिलना है ना, तो उसमें आंसर जब मिलेगा तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम डेट जो है बतानी पड़ेगी कि ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट का एक्शन होना चाहिए इफ़ अप्रोप्रिएट एंड एक्सप्रेस द अप्रिसिएशंस भी, उसमें डेफिनेटली आप उनको अप्रिसिएट भी करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्रिएटिंग रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है जी, ये एक और किस्म है, एक और काइंड है। इस रिक्वेस्ट मैसेज में होता क्या है, व्हेन यू राइट अ मैसेज दैट रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन और एक्शन एंड यू थिंक योर रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड पॉजिटिवली, तो फ्रंट लोड योर मैसेज मीन्स विच मीन्स इन इमीडिएटली टेल द रीडर व्हाट यू वांट, राइट। याद रखिएगा ये इमीडिएटली टेल द रीडर व्हाट यू वांट। रीडर्स टेंड टू लुक एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग फर्स्ट, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो रिक्वेस्टिंग मैसेजेस होते हैं उसमें रीडर्स ओपनिंग यानी कि सब्जेक्ट लाइन में या क्लोजिंग एट द एंड या जो मेन पॉइंट होते हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। एज अ राइटर देन यू शुड कैपिटलाइज ऑन दिस टेंडेंसी, तो उनको कैपिटलाइज कर दिया जाता है चीज़ों को बाय पुटिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट फर्स्ट, कि सबसे अहम स्टेटमेंट जो है उसको सबसे पहले लाया जाता है। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैसेज इज यूजुअली क्वेश्चन और अ पोलाइट कमांड, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ है। फिर बिग आइडिया फर्स्ट, अब जब आपने मैं रिपीट करूंगा इससे फिर से कि क्रिएटिंग रिक्वेस्ट मैसेज जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आपने सबसे जो इमीडिएट है, सबसे जो अहम आइडिया जो होता है वो उसको जो है वो सामने आपको रखना पड़ता है। बिग आइडिया से पहले मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये हम बात कर रहे हैं इस वक्त क्रिएटिंग रिक्वेस्ट मैसेज की। रिक्वेस्ट मैसेज करते वक्त ये इन सारी चीज़ों को आपने सबसे पहले इमीडिएटली अपने जो मैसेज है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनको सामने रखा। उसके बाद आपने अगला पॉइंट रखा एक बिग आइडिया फर्स्ट, सबसे जो अहम मेन आइडिया है उसको आपने रिप्रेजेंट किया। और वो क्या करेंगे, स्टार्ट इमीडिएटली विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन आस्किंग क्वेश्चंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स एट अ फर्स्ट, सबसे अहम सवाल जो है, सबसे अहम बात जो होगी, सबसे अहम पॉइंट जो होगा वो सबसे पहले आएगा। एन अल्टरनेटिव ओपनिंग बिगन्स विद अ समरी स्टेटमेंट, इसके बरक्स जो इसका अल्टरनेटिव जो होता है वो समरी के तौर पर होता है, समरी के तौर पर सामने आ जाता है, यानी कि इसके अगेंस्ट या अल्टरनेटिव जो वे ऑफ राइटिंग लेटर होता है वो समरी टाइप होता है। जबकि ये वाला जो क्रिएटिंग रिक्वेस्ट मैसेज है ये जो होता है इसमें आप क्वेश्चन फर्स्ट करते होते हैं। फिर क्लोजिंग विद एप्रिसिएशन एंड कॉल फॉर एन एक्शन, रिमेंबर closing with appreciation and call for action. In a closing letter the reader courteously with what is to be done. If a date is important, set an end date to take action and explain why. कि उसमें डेट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ़लाँ डेट से पहले पहले आपने वो पर्टिकुलर काम करना है तो उसको लिख देना चाहिए और उसकी वजह भी लिख देनी चाहिए, तो बेहतर हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा लोगों के समझने के लिए। तो उसके बाद ये है कि यू कैन सेव द रीडर्स टाइम बाय स्पेलिंग आउट एक्शन बाय टेकिंग अवॉइड ओवरयूज्ड एंडिंग सच एज थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, ट्राइट वगैरह के इससे अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू इन एडवांस फॉर, मतलब ये है कि और प्रिजम्पशंस वगैरह जो है इससे अवॉइड होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू नॉट हेजिटेट टू कॉल मी, इस ये सजेस्ट दैट यू डिडंट मेक योर सेल्फ क्लियर, कि आपने इस तरह से बात करनी होती है कि आप अगले बंदे को और ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग ना हो और बड़ा ही पोलाइट वे में जो अपना मैसेज प्रेजेंट करते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू अ रिक्वेस्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें। रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट जो है, कोई अगर रिक्वेस्ट पूछी गई है किसी कंपनी से तो उसको आपने कैसे टेक करना है। राइटिंग प्लान फॉर ईमेल मेमोज एंड लेटर रिप्लाईज, याद रखने की यहाँ पे बात है, ये जहन में बच्चों रखने की बात है कि रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट मैसेज या लेटर के, वो लेटर ईमेल भी हो सकता है, मेमोज भी हो सकता है और वो टिपिकल लेटर भी हो सकता है। उसको रिप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सब्जेक्ट लाइन आएगी उसमें सबसे पहले। उस सब्जेक्ट लाइन में क्या करेंगे आप, समरी होगी, मेन आइडिया, मेन इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम योर रिप्लाई,
अ सब्जेक्ट लाइन इज एन ऑप्शनल इन लेटर्स, सम टाइम ये ऑप्शनल होती है, आप भेज सकते हैं, सम टाइम ये ऑप्शनल नहीं भी होती, लेकिन ईमेल में ये तकरीबन जो है वो सब्जेक्ट लाइन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जैक्ट होती है। ओपनिंग स्टार्ट डायरेक्टली बाय रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट विद अ समरी स्टेटमेंट। यहाँ जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले स्लाइड में कि ये जो है पहले जिस पर हम बात कर रहे थे उससे ऑपोजिट है, ये क्रिएटिंग रिक्वेस्ट है, ये रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट है। तो समरी स्टेटमेंट होगी प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स इन अ रीडर्स फॉर्मेट, रीडेबल फॉर्मेट, कि एक पैराग्राफिकल फॉर्मेट में जो है वो आप उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि वो उनकी समरी के बाद जो है वो डिटेल जो है उनके सामने, लोगों के सामने या आपके सेंटर के सामने, रेसिपिएंट के सामने आ सके। फिर उसके बाद क्लोजिंग ऐड है कंक्लूडिंग रिमार्क्स समरी और मे बी यू कैन से ऑफर फॉर अ फर्दर असिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो रिस्पॉन्डिंग टू रिक्वेस्ट लेटर्स, मेमोज और ईमेल वगैरह का जो है वो आप मैसेज डेवलप कर पाएंगे। दैट दीज आर क्वाइट सिंपल एंड सिंपल वे ऑफ इट जस्ट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड अ लिटिल मोर। अब आजकल के दौर में जो जैसा कि हम जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर में है और सोशल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया जो है वो हमारे फिंगर टिप्स पे हर वक्त रहता है, तो उसमें सम टाइम क्या होता है कि रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर्स कमेंट्स ऑनलाइन, ये एक नई चीज़ भी होती है और इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं काम करने के कि ऑनलाइन कमेंट्स को किस तरह से डील करना चाहिए। मस्ट लिसन टू एवरीवन एंड इफ पॉसिबल देन रिस्पॉन्स टू सम सर्टेन कमेंट्स। याद रखिएगा कि हर कोई मैसेज जो है उसको हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि आप हर किसी के मैसेज पर रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको चूज कर लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज ने के पास बहुत सारे तगड़े तगड़े किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो खास किस्म के मैसेजेस को जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उस पर रिप्लाई करते हैं। इसी तरह से एम्बैरेसिंग कस्टमर्स जो है कमेंट्स आ जाते हैं कई दफ़ा उनके, मेक देम रियलाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, प्रॉब्लम नहीं यहाँ लिखा हुआ। तो अगर कोई ऐसे कमेंट्स हैं जो कंपनी के पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव आस्किंग क्वेश्चंस हैं, तो उस पर कमेंट्स आपके यही ऑनलाइन बनेंगे कि उनको सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत होती है कि यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल टेक अ टाइम, वट एवर द प्रॉब्लम विल बी सून सॉल्व्ड। फिर गाइडलाइन टू रिस्पॉन्ड ऑनलाइन मैसेजेस, किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड करना था पर्टिकुलरली ऑनलाइन। एक्सपर्ट्स से दैट्स नॉट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट, याद रखिएगा एक्सपर्ट कहते हैं हर कमेंट पर जो है वो हर कमेंट पर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना, रिस्पॉन्ड ओनली व्हेन यू कैन ऐड वैल्यू, कि तभी आप रिस्पॉन्ड करें जब आप अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में इजाफा करना चाहते हो, राइट। तो ये तो ऑनलाइन के लिए थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस थी। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन मैसेजेस। इंस्ट्रक्शन मैसेजेस क्या होते हैं, वो उनको किस तरह से हमने प्रिपेयर करना था। लाइक रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन मैसेजेस, रिक्वेस्ट मैसेजेस, इंस्ट्रक्शन मैसेजेस फॉलो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अप्रोच। इसमें एक डायरेक्ट अप्रोच जो है वो डिस्कस होती है। हम इसको जो है वो डायरेक्ट अप्रोच को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच को जो है हमने डायरेक्ट क्लेम्स में और कंप्लेंट्स में जो है वो उसको हमने डिस्कस करना है, जो कि पॉइंट नंबर 3 है, याद रखिएगा, जो कि पॉइंट नंबर 3 है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इसको टच कर लेते हैं कि यू मे बी आस्क्ड टू राइट इंस्ट्रक्शंस अबाउट हाउ टू एक्सेस क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन एटसेट्रा। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मालूमात आपको फराहम की जाती हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन मैसेजेस की बात की जाए तो वो जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेप्स में जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस इनटू स्टेप्स। बिफोर राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रोसेस बी श्योर यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कम्प्लीटली, कि आप अच्छी तरह से प्रोसेस को समझते हैं। क्रिएट लॉजिकल स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर, कि आप उन स्टेप्स को लॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज करें। प्रैक्टिस कंप्लीटिंग द प्रोसीजर योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से इसको डेवलप कर लें कि फिर जो है वो दूसरों को भी ताकि पहुंच जाए। दिस राइटिंग प्लान विल गेट योर स्टार्टेड। इसमें जो है वो प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन मैसेजेस में, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन मैसेजेस का मतलब ऐसे ही है कि आपने
फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को कॉल करते हैं, हम अपने सेल फोन से किसी को, बैंक को, या किसी भी आप कह सकते हैं कि सेलुलर कंपनी के नुमाइंदे से बात करते हैं, तो वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, वो हमें गाइड करता है कि आपने कौन सा पैकेज या कौन सा काम जो है वो कैसे कैसे करना है, कि स्टेप 1 में ऐसा करना है, स्टेप 2 में ये यहाँ पर जाना है, स्टेप 3 में जाके आपने ये काम कंप्लीट करना है। तो ये भी इंस्ट्रक्शन मैसेजेस ऐसा ही होता है कि आपने कंपनी में एंटर होना है, कंपनी की फाइल में यहाँ 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 ये जो है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो आपने वहाँ से गैदर करके फिर आपने फॉरवर्ड करनी है। तो उसके लिए जो लिखने का तरीका है, इंस्ट्रक्शन प्लान या इंस्ट्रक्शन मैसेज लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सब्जेक्ट लाइन में समरी आप बयान करेंगे, समराइज द कंटेंट ऑफ द मैसेज, देन ओपनिंग में एक्सपैंड द सब्जेक्ट लाइन बाय द स्टेटिंग द मेन आइडिया कंसाइजली इन अ फुल सेंटेंस, प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन इन स्टेप्स। याद रखिए, ये स्टेप्स याद रखने वाले 4 स्टेप्स हैं इसके राइटिंग इंस्ट्रक्शन मैसेज के। तो starting the main idea concisely in a full sentence, present the instructions in a steps in order to which they are to be carried out, arrange the items vertically with the with the numbers, begin each step with an action verb using the imperative or imperative mode। याद रखिएगा कि अरेंजमेंट जो है वो वर्टिकली होनी चाहिए और नंबर्स और बुलेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। बिगन्स विद एन एक्शन वर्ड्स, तो काम के हवाले से ऐसे अल्फाज जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव दोनों जो है वो आपको आपकी बुक में जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। Closing a request, specific action, summarize the message and present a closing thought, if appropriate include a deadline and reasons। तो अगर मुमकिन हो तो उसमें डेडलाइन, लास्ट डेट जो है वो टाइम भी बता दी जाए और इसमें इसकी तमाम वजूहत भी बता दी जाए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग। 2 points we have completed today where I would like to make it close, make it clear to everyone that we discussed two things today. The first was the email memos and letters, how to write the responding letters और फॉर्मेटिंग बिजनेस लेटर्स है। फिर हमने देखा कि टिपिकल रिक्वेस्ट रिस्पांस एंड इंस्ट्रक्शन मैसेजेस, जिसमें हमने लास्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह से आपने प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन मैसेज जो है वो बनाना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।